So, who's the first player you think about when you talk about the downfall or the extension of that number 10 role? Yeah, you are absolutely right. In this video, हम बात करने वाले हैं मेसूट ओजील के बारे में. How good was he? And why isn't he rated amongst the best midfielders to ever play football? Was he overrated? Was his career an overall failure? We'll find out everything about Mesut Ozil, aka the assist king of our generation. So Mesut Ozil is regarded as one of the most elegant footballers to ever grace the football pitch. 2014 के वर्ल्ड कप में जर्मनी को उसने लीड किया अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड he made him win the वर्ल्ड कप in the extra time courtesy to that Mario Götze goal. Ozil का वो वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा ब्लिस्टरिंग था कह सकते हो because he had a very good performance. He averaged 87% pass accuracy and 66 average touches in the whole World Cup, 2.4 chance created in every single game. But it was not very much comparable to the other top players in the World Cup. But then the start, जो सबसे ज़्यादा top पे था उसका, it was his passes into the final third, or should I say, the successful passes in the final third, which was more than Toni Kroos, Muller, even Lionel Messi, who won the Golden Ball. Mesut Ozil की family is of Turkish origin, but Ozil started playing at Schalke academy पे थे वो, and then from there he transferred to Werder Bremen, and then 2010 में he transferred from Werder Bremen for 16 million euros to Real Madrid. And at Real Madrid, 3 seasons में he had 69 assists. That means more than 20 assists per season. Man, that's crazy. He also formed a very formidable partnership alongside Cristiano Ronaldo, जिसको कि उसने 31 times assist किया in his entire tenure that he played under Jose Mourinho. So Jose Mourinho के under at that time Jose Mourinho was utilizing 4-2-3-1, जहाँ पे ओजील ने वो proper त्रिकार्तिस्ता का रोल खेला. अब त्रिकार्तिस्ता is known to be a player जो कि स्ट्राइकर के जस्ट पीछे खेलता है बट इन फ्रंट ऑफ द मिडफील्ड, जिसको मोरिनियो ने एक प्रॉपर नंबर 10 रोल नाम दिया. फिर 2012-2013 सीजन के एंड में मेसूट ओजील का ट्रांसफर होता है फ्रॉम रियल मैड्रिड टू आर्सेनल फॉर 47 मिलियन यूरोस आफ्टर बिट ऑफ अ फॉल आउट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड मेसूट ओजील एंड कार्लो एंचेलोटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद. बट देन आर्सेनल पे आने के बाद मेसूट ओजील एंडेड द ड्रॉट ऑफ 9 years and he made them win the first title. FA Cup उन्होंने जीता हल सिटी के अगेंस्ट and his debut season was very good. फिर later on मेसूट ओजील जाते हैं and आर्सेनल को जिताते हैं FA Cup in 2015 and also in 2017. बट जो ये 2015 and 16 का जो सीजन था मेसूट ओजील के लिए, it was one of his best seasons जहाँ पे he racked up 19 Premier League assists and that is the second highest assist in the Premier League ever. अभी 20 हो चुका है. केविन डे ब्रूने एंड थियरी ऑनरी का रिकॉर्ड है. They still hold that for 20 assists in a single Premier League season. And finally, after all of this, Mesut Ozil left for Fenerbahce in 2021 in January as Mikel Arteta failed to include him in the Premier League side and also in the Europa League side. तो थोड़ा सा वहाँ पे एक bit of fallout हुआ था जिसके बारे में हम वीडियो में बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे. So what is Mesut Ozil's style of play? कैसे हम उसको परसीव करें? यार मेसूट ओजील अगर मैं बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट फुटबॉलर, पोजिशनल अवेयरनेस, बहुत ही तगड़ी विजन है उनके पास. तो इफ़ यू आई जस्ट हैव टू नेम हिज क्वालिटीज, आई वुड से सबसे पहले विजन, दूसरा एलिगेंस एंड हिज फर्स्ट टच, द कंपोजर वॉज ब्रिलियंट. थर्ड इज द सेल्फिशनेस ऑफ दैट गाय, जिस हिसाब से वो खेलता था ऑन द पिच. Fourth is his set piece deliveries, his crosses and everything. Fifth is his positional sense, because later on हमने देखा कि मेसूट ओजील आगे जाके even for Germany he used to play in that false 9 या false winger वाली एक पोजीशन पे. And at Real Madrid एक छोटा सा ट्रिविया यहाँ पे that they used to call him Nemo. आप लोगों को याद होगा Finding Nemo में that fish was there, तो उसको Nemo कहा जाता था at Real Madrid. But his playing style was brilliant. एक प्रॉपर नंबर 10 जिसको कहते हैं त्रिकार्तिस्ता, मतलब जो कि फॉरवर्ड के एक बिहाइंड खेलता है एंड देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योर प्ले मेकिंग. बहुत सारे बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने कहा है कि इवन जोसे मोरिनो ने कहा है कि दे कैन नॉट बी अ सेकंड कॉपी ऑफ मेसूट ओजील, दे कैन नॉट इवन बी अ बैड कॉपी ऑफ मेसूट ओजील. एंड इफ इट वर फॉर जोसे मोरिनो,
मुझे लगता है कि मेसुत ओजिल वुड स्टिल बी प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ द वे ही हैज अडैप्टेड एट रियल मैड्रिड. इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विद एंगल डी मारिया, विद बेंजेमा अप टॉप. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मीम्स फ्लोइंग इन जहां पे स्पून फीडिंग हो रही होती थी एंड वहाँ पे वो मेसुत ओजिल थे एंड वो ही इज फीडिंग द असिस्ट टू द प्लेयर्स. इवन एट आर्सेनल जहाँ पे आर्सेनल ने काफ़ी अच्छा खेलना स्टार्ट किया था, तो मेसुत ओजिल वाज ब्रिलियंट. बट देन हाउ यू लुक एट मेसुत ओजिल एज अ फुटबॉलर. Mesut Ozil is the proper creator, the purest of the number 10s to ever play. And then later on you saw कि जो decline आया है number 10 का, it all started from the decline of Mesut Ozil. इसलिए जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, having that statement said कि when you think about the decline or the termination of that number 10 players, कौन आता सबसे पहले दिमाग में? Me personally, I think of Mesut Ozil because the guy didn't defend, ठीक है, track back करने में काफ़ी स्लो था, but he was pure football. He can play as a striker, second striker. काफ़ी बार हमने उसको देखा है कि he used to drift wide to create space. उसको positional sense बहुत अच्छी थी. He used to drop deep to link up the play. But बस वही बात है, मॉडर्न फुटबॉल के हिसाब से मेसुत ओजिल cannot change himself and इसी वजह से उसको मैड्रिड छोड़ के आर्सेनल जाना पड़ा. एंड लेटर ऑन इवन मेसुत ओजिल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया. सो नाउ वी जस्ट गोना टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मेसुत ओजिल. सो 2010 में रियल मैड्रिड के साथ साइन करने के बाद मेसुत ओजिल वाज हैविंग अ वंडरफुल सीजन. मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में मेसुत ओजिल का नाम लिया जाता था एंड ही वाज द रीजन जिसकी वजह से जोसे मोरिनो काका को नहीं खिलाया. काका वाज साइंड फॉर अराउंड 67 मिलियन यूरोज एंड मेसुत ओजिल 16 मिलियन यूरोज में आए थे. बट देन इट वाज Ozil who impressed Jose Mourinho more than Kaká. And Kaká की obviously आपको injuries issues already उन सब के बारे में पता है. But it was the virtuousness of Mesut Ozil, the pure elegance. इस हिसाब से he used to rack numbers after numbers in La Liga with his assist. 2011-2012 season one of his best seasons रहा है in his career personally. And उस season में he won the La Liga. He also won the most assist provider की एक टाइटल जो होती है वो भी उसने जीता. But then everything went to dust 2013-2014 के सीजन में. होता क्या है कि उस साल मैड्रिड गोस ट्रॉफीलेस एंड जोसे मोरिनो गेट्स सैक्ड. अब इन कम्स इन कार्लो एंचेलोटी. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोसे मोरिनो 4-2-3-1 इस्तेमाल करते थे जहां पे मेसुत ओजिल यूज्ड टू प्ले इन दैट होल दैट प्रॉपर क्रिएटर वाला रोल में. बट देन जब कार्लो एंचेलोटी आए तो उस टाइम पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ऑलरेडी प्लेयर्स कुछ साइन कर लिए थे. इलारामेंडी को उन्होंने साइन किया 38 मिलियन यूरोज में. इसको को उन्होंने साइन किया 30 मिलियन यूरोज में. दे साइंड कार्वाहाल फॉर 6.5 मिलियन यूरोज. दे साइंड कैसेमेरो फॉर 6 मिलियन यूरोज. अब दैट वाज ऑल डन इवन बिफोर द साइनिंग ऑफ गैरेथ बेल व्हिच दे डिड अल्टीमेटली फॉर 100 मिलियन यूरोज. ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन ट्रांसफर मार्केट के खत्म होने से पहले 1 सितंबर को उन्होंने साइनिंग की थी फॉर 100 मिलियन यूरोज. अब प्री प्लान क्या था कि डी मारिया वाज सपोज टू बी इंक्लूडेड इन दैट डील फॉर गैरेथ बेल. बट देन डी मारिया कहा कि नहीं यार, आई would stay here and fight for my position because आप सबको पता है कि गैरेथ बेल एंड डी मारिया की पोजीशन सेम टू सेम है. बट देन डी मारिया सेड कि नहीं यार, आई विल स्टे, आई विल फाइट फॉर माय पोजीशन. इसको केम इन एंड इसको वाज सपोज टू बी दैट गाय जो कि मिडफील्ड को आगे ले जाएगा ऑफ रियल मैड्रिड बिकॉज ही हैड अ फैंटास्टिक सीजन विद मालागा एंड कहीं ना कहीं मच मोर कंप्लीट मिडफील्डर के तरीके से कार्लो एंचेलोटी इसको को देखता था. तो अब सीन क्या होता है कि Ozil, towards the last days of him at Real Madrid, he still played a few games at Real Madrid. 2 सितंबर को एकदम डेडलाइन डे पे उनका ट्रांसफर होता है फॉर आर्सेनल फॉर 47 मिलियन यूरोज. बट बिफोर दैट ही इवन प्लेड गेम्स. ठीक है, तो पहला गेम जो उन्होंने खेला रियल बेटिस के अगेंस्ट, उसमें दे वॉन इट 2-1. इसको भी खेला था, ओजील भी खेला था, बट इसको उस मैच में बहुत बेहतर खेला था. ही एक्चुअली गेव द असिस्ट और शायद क्रिएट किया था उसने वो चांस को जिसकी वजह से दे वॉन इट 2-1. आफ्टर द गेम कार्लो एंचेलोटी क्या कहते हैं कि इसको एंड ओजील नीड टू डिफेंड मोर, मतलब नीड टू डिफेंड बेटर. अब सीन क्या होता था, क्योंकि ओजील वाज सपोज टू प्ले इन दैट 4-2-3-1 वाला रोल जहां पे ही यूज्ड टू प्ले एज दैट क्रिएटर. उसको डिफेंडिंग करने में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था बिकॉज ही हैड गॉट 2 प्लेयर्स इन बिहाइंड हिम टू डू दैट जॉब. बट इन कार्लो एंचेलोटीज 4-3-3 सिस्टम, 4-3-3 में प्रॉपर एक नंबर 10 का होना बहुत मुश्किल होता है. सो ही वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रैक बैक एंड डू द डिफेंडिंग, जिसके लिए ओजील बिल्कुल भी फेमस नहीं है. सो वहां पे उसका डिफेंसिव एट्रीब्यूट बिकेम हिज वीकनेस. सो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, अगला गेम जो उन्होंने ग्रेनाडा के अगेंस्ट खेला, दैट आई थिंक दे won it 4-2, जिसमें कि इसको ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी. एक्चुअली स्कोर 2 आई थिंक. उस मैच में ओजील डिडंट कंप्लीट हिज एंटायर गेम एंड देन इन्हीं दोनों मैचेस में इवन इन द प्री सीजन डी मारिया ने बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लिया था कार्लो एंचेलोटी को. एंड
कार्लोस थॉट कि नहीं है मैं डीमारिया को तो खिला सकता हूं, बट दे स्टिल नीडेड टू सेल वन प्लेयर बिकॉज बुक्स बैलेंस करनी थी। गैरेथ बेल ऑलरेडी साइन हो चुके थे। बट यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग को याद होगा गैरेथ बेल की जब प्रेजेंटेशन हो रही थी तो फ्लोरेंटिनो पेरेज वाज देयर एंड वहां पे फैंस वर इन द ग्राउंड एंड दे वर चैंटिंग फ्लोरेंटिनो पेरेज, do not sell Ozil and Florentino Perez was shushing them। और उसी दिन के बाद मैचेस जो होते हैं उसी दिन के बाद एक्चुअली सेकेंड डे ही फर्स्ट को ये सीन हुआ, सेकेंड को ओजील को सेल कर दिया उन्होंने क्योंकि उनको यार बुक्स बैलेंस करनी थी। तो एक्स मिला मेसुट ओजील को बिकॉज कह सकते हो कहीं ना कहीं दे वांटेड टू कीप डी मारिया बिकॉज उसने ज्यादा कन्विंस किया कार्लो एंचेलोटी को। बट देन एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में होता है कि क्या अगर ज्यादा टाइम दिया जाता ओजील को, मे बी हो सकता है वो अडेप्ट कर पाता। बट देन ही ट्रांसफर्ड टू आर्सेनल, वहां पे उसकी एक अलग ही स्टोरी है। ओजील के स्टार्टिंग डेज एट आर्सेनल वर गुड, ठीक था, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, ही वाज प्लेइंग गुड। बट देन प्रॉब्लम स्टार्टेड टू हैपन इन 2018 जब जर्मनी फेल्ड टू प्रोग्रेस फ्रॉम द ग्रुप स्टेज एंड सारा क्रिटिसिज्म ओजील के ऊपर आता है, स्पेशली आफ्टर ही हैड दैट फोटोग्राफ ऑफ हिज टेकन विद द टर्किश प्रेसिडेंट। तो अब द फोटो वॉज काइंड ऑफ इंटरप्रेटेड एज अ फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर द एर्डोगन पॉलिसीज, जो कि आगे जाके विच लेड टू क्वेश्चन हिज लॉयल्टी टू जर्मनी। अब ओजील ने आगे जाके क्लैरिफाई किया अपने आप को विद मल्टीपल ट्वीट सेइंग कि इट्स सोली रिलेटेड टू फुटबॉल एंड दैट इट्स हिज, क्योंकि उसके रूट्स हैं यार टर्किश बैकग्राउंड में ना, और कुछ नहीं है। But this ultimately got out of hand and he faced severe backlash from the social media and even he got on into a spat with the DFB president calling him racial and unprofessional, and later that year Mesut Ozil retired from international football at the age of 28. But you know what? Mesut Ozil played just 2 games for Germany in that 2018 World Cup and he racked 5.5 chance created per game and that was the highest in the competition. Nobody ever matched that feat. क्लास वॉज देयर मेरे भाई। सो अब वर्ल्ड कप के बाद एंड 2018-2019 के सीजन के स्टार्ट होने से पहले ओजील को नंबर 10 जर्सी हैंड की गई एट आर्सेनल आफ्टर द डिपार्चर ऑफ जैक विल्शेयर एंड ही वाज आल्सो मेड द वाइस कैप्टन ऑफ आर्सेनल अंडर उनाई एमरी। बट वो सीजन उसका स्टार्ट हुआ विद सेवरल इंजरीज एंड इनकंसिस्टेंसीज। कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि ओजील का फॉर्म ऑलरेडी डिक्लाइन में है। अब ओजील ने क्या किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया अंटिल 2021 बिकॉज ही एंटर्ड इनटू हिज लास्ट 6 months of his contract, but then he was later publicly criticized by Unai Emery for showing lack of motivation and उसी दौरान rumors started to swirl about his departures. अब 2019 के mid season में when Arteta joined and due to the pandemic in 2020 reports ये आई, it was rumored कि Ozil refused a 12.5 pay cut as he felt that the club didn't value him for his loyalty. It is still rumored, but then we all know कि Ozil ने कैसे Gunnosaurus की जॉब बचाई because आफ्टर द पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक आर्सेनल फायर्ड गनोसॉरस जो कि उनका क्लब मैस्कॉट है। तो ओजील ने कहा ही स्टेप्ड इन एंड सेड कि आई विल पे फॉर द वेजेस ऑफ द मैस्कॉट, लेट हिम बी देयर। तो उसने एक बहुत अच्छा हाथ बढ़ाया फ्रेंडशिप का एंड ही एक्चुअली सेव द जॉब। तो इवन Mesut Ozil was one of the most hated players मेरे भाई because of his off field antics, जो वो चीज़ें करता था, his comments and all, जिसकी वजह से वो he gets involved into controversies and that affected स्पेशली एट अ क्लब लाइक आर्सेनल बिकॉज यू नो कि आर्सेनल कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड क्लब है। अब होता क्या कि 2020-2021 सीजन के स्टार्ट पे मेसुट ओजील वाज लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड फॉर प्रीमियर लीग एंड ऑल्सो फ्रॉम द यूरोपा लीग। एंड इसके बारे में ओजील ने ट्वीट किया एंड काफ़ी डिटेल पैराग्राफ्स में उसने बताया कि यार ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वॉज ओनली अलाउड टू प्ले विद द अंडर 23s। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि इस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट लेटर ऑन आर्टेटा केम ऑन एंड सेड कि यार ये जो एक्सक्लूजन है मेसुट ओजील का, इट इज़ टोटली बिकॉज ऑफ फुटबॉलिंग रीजंस। मेरे तो समझ में नहीं आता यार, ठीक है द फॉर्म वॉज नॉट दैट गुड, देयर वर इंजरीज इशूज एंड ऑल, बट देन हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्क्वाड Arsenal do take dire measures at times यार। बट सीन क्या है, some of the people suggested कि ओजील का जो omission था from the squad was related to his criticism of the treatment of the Uyghur Muslims in China, from which Arsenal publicly distanced themselves। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड इंटरनल रिपोर्ट्स यही थी कि प्रोबेबली उसकी कमेंट्स, उसकी स्टेटमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ यूगर मुस्लिम्स की वजह से आर्सेनल डिडंट have him in their plans। आर्टेटा ने उसको एक्सक्लूड कर दिया स्क्वाड से। सो दिस लेड टू द ब्रेकअप बिटवीन
मेसूट ओजील एंड आर्सेनल एक ऐसा एक रिलेशनशिप था इन दोनों का जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बिकॉज मेसूट ओजील वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आई हैव सीन एट आर्सेनल। बट देन इतना सब कुछ होने के बाद से 27 जनवरी 2021 को ओजील जाते हैं फेनेर्बाचे, अपना टर्किश क्लब ज्वाइन करते हैं, जो कि उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी हैप्पी टू बी ओवर देयर, ही ऑलवेज वांटेड टू बी ओवर देयर। एंड देन 24 मार्च 2022 की न्यूज़ आती है कि फेनेर्बाचे ने अनाउंस किया कि मेसूट ओजील हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्क्वाड बिकॉज ही वाज अगेन इन्वॉल्व इन अ स्पैट विद द मैनेजर। यार देखो, अगर ये एक बार हो तो चलता है, 2 बार हो तो स्टिल चलता है, बट जब ये 3 या 4 बार हो जाए इट्स नॉट वेरी गुड। ही वॉज इन्वॉल्व विद फ्लोरेंटिनो पेरेज, जोसे मोरिनियो, कार्लो एंचेलोटी, ही वॉज इन्वॉल्व विद द DFB president, he was also involved with Mikel Arteta and the Arsenal board, and then again at Fenerbahce he was involved in these things जो कि ऑफ फुटबॉलिंग इवेंट्स हैं, एंड प्रोफेशनली ही शुडंट बी डूइंग दैट। बट देन अगेन यू वुड वांट टू टॉक अबाउट कि ओपिनिएटेड तो फुटबॉलर्स होते ही होते हैं थोड़े। सो all of this scenario made us make this video to talk about कि क्या at the very end you would consider Mesut Ozil का career as a failure, because he is 33 right now. He's not playing at that level. He's not in the squad of Fenerbahce. उसका करियर अगर प्राइम में तुम देखोगे, it was only for like what 4 या 5 years जो कि पीक था, and that wasn't even consistent. मैड्रिड पे 3 साल उसने अच्छे खेले, आर्सेनल का स्टार्टिंग ईयर्स अच्छे थे, but then on and off था. So he doesn't even have that consistent patch of time जहाँ पे आप कह सकते हो कि Mesut Ozil has dominated for 2-3 seasons. तो being one of the most elegant players that I've seen, Mesut Ozil still doesn't come up when people talk about the best midfielders to play. But still, having said that, I love Mesut Ozil. Personally, I respect that lad because pure football था वो बंदा मेरे लिए. So let me ask you this question. How do you judge a player? You judge him based upon his consistency or you judge him based upon his moment of brilliance? What would you like? आप एक consistent जो एक प्लेयर कंसिस्टेंट रहा है फॉर लेट्स से 5, 7, 10 ईयर्स, आप उसको बैक करोगे, और वुड यू बैक अ प्लेयर जहाँ पे उसने टोटली डोमिनेशन दिखा दिया है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर? व्हाट वुड यू पिक? लेट मी पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. वुड यू टेक अ सिंगल unplayable day of Mesut Ozil, or would you take 5 match days of say Thomas Muller for 7 on 10 rating? This is argumentative, and किस हिसाब से आप जज करेंगे? Do let me know in the comments as well. Up in modern football, there have been a lot of criticism upon midfielders who do not press, who do not defend, and Ozil was one of the first guys to come into this criticism कि Ozil defend नहीं करता है. And yeah, honestly, criticism, the downfall of number 10 started from Mesut Ozil. But then we have seen players even now who are proper number 10s, but they have added something different to the game. They try to press, they try to defend as well, because a sole playmaker will find it very hard for him to continue at longevity, because maybe उसके क्लब के tactical setup में he is playing as that playmaker. Let's say if he makes a move to any other club जो कि एक 4-3-3 में खेलते हैं और who want the midfielder to press, what then? So आजकल जो midfielders आ रहे हैं, let's say Mason Mount है, Florian Wirtz है, they have added that pressing arsenal into their list of qualities, and that's the reason why आप वो प्रॉपर त्रिकार्तिस्ता के रोल में एक डिक्लाइन देखते हो. सो वॉज इट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ Mesut Ozil? कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. Mesut Ozil की 2-3 कमियां और थी. लाइक वी सेड, ही सफर्ड फ्रॉम इनकंसिस्टेंसीज, इंजरीज, एंड ऑल्सो हिज ऑफ द फुटबॉल पिच इन्वॉल्वमेंट्स. तो यार, अगर कोई एक प्लेयर ऑफ पिच इन्वॉल्वमेंट में पार्ट लेता है and he is playing, his performance get affected by that, how would you rate him then? But then again, I just want to end the video on the highest note that we all miss Mesut Ozil. हमें उसके गोल्स, हमें उसके एक्सप्लॉइट्स अभी एकदम क्लियरली दिमाग में याद हैं. बट लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट इज़ योर फेवरेट मोमेंट ऑफ Mesut Ozil? ये ज़रूर मुझे बताना इन द कमेंट्स. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना. एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ रिमेंबरिंग द कल्ट हीरोज. नेक्स्ट कौन से प्लेयर के ऊपर वीडियो बनाना है? डू लेट मी नो. वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो एवरीथिंग वट एवर यू थिंक अबाउट Mesut Ozil in the comments down below. Subscribe to the channel because हम ऐसे सिमिलर वीडियोस लाते रहते हैं. And that's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.